हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. Two balls A and B having masses 1 kg and 2 kg. इनिशियली सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. टू बॉल्स हैं A and B of 1 kg and M2 is equals to 2 kg. Moving with a speed 21 meter per second. U1 is given 21 meter per second and U2 is given 4 meter per second respectively in opposite direction. So B's velocity U2 is given 4 meter per second in opposite direction. Correct? So this is that. Collide head on. Then what they do? They collide head on. वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती है? हेड ऑन कोलाइजन करती हैं. After collision, A moves with a speed of 1 meter per second. So after collision, A moves with a speed of 1 meter per second. So V1 is equals to 1 meter per second and in the same direction. And then correct statement is, and they have not told anything about object B. So B in a direction is given, neither the velocity. So we need to find the value of V2 first. Correct? And there are some statements are given. ठीक है? Okay. The velocity of B after collision is 6 meter per second opposite to its direction of motion before collision. So one statement is given कि जो B की velocity है वो V2 जो है वो 6 meter per second है और उसकी direction opposite है from before collision से. The coefficient of restitution is 0.2. The loss of kinetic energy due to collision is 200 joule. The impulse of force between the two ball is 40 newtons. तो 4 statements, different statement are given और हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही है. ठीक है, और मोर देन वन भी पॉसिबल है क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें दिया है. की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum and one is restitution, coefficient of restitution. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. सो उसका जो मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन वो कंजर्व होना चाहिए. वी कैन अप्लाई m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 है ना प्लस m2v2. m1 इज गिवन 1 into 21 प्लस 2 into 4 इज इक्वल्स टू, बट u2 की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, अपोजिट है, तो -4 अपन ले लेते हैं. m1 इज 1 into 1 प्लस 2 into v2. चलिए, दिस इज 21 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 2 into v2. दिस विल गिव्स अस 21 minus 9, that is 12 divided by 2. So 6 meter per second is v2. So second object की velocity after collision जो आई है वो है 6 meter per second और ये velocity क्या है? पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, करेक्ट, इसकी जो डायरेक्शन होगी, पहले नेगेटिव थी डायरेक्शन हमारी फर्स्ट टाइम, है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन थी, अब पॉजिटिव है. तो हम कह सकते हैं कि जो बी की वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन बिफोर कोलाइजन है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ फॉर पार्ट बी, coefficient of restitution. So we will apply coefficient of
restitution, they know that E is equals to velocity of separation divided by velocity of approach. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें दी हुई है, ठीक है, v2 माइनस v1 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, ठीक है, दैट इज 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 21 माइनस ऑफ माइनस 4, सो 5 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज 1 बाय 5 और 0.2, ठीक है, so value of E is 0.2. So just check, the coefficient of restitution is 0.2. This is correct option. So second option is also correct. So हम कह सकते हैं this is true. The loss of kinetic energy due to collision is 200 joule. कोलाइजन के कारण जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो 200 जूल है, ये हमें चेक करना है. सो थर्ड पॉइंट के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दें. इसके कारण क्या कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलाइजन क्या होती है, कंजर्व्ड रहती है, ठीक है. सो हम देख लेते हैं, बिफोर कोलाइजन जो होगी वो होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है. फर्स्ट है हाफ विल टेक कॉमन, सो m1 इज 1 इंटू 21 स्क्वायर प्लस 2 into 4 square is equals to half is taking common 1 into 1 square plus 2 into 6 square. Change in kinetic energy will become 21 square will be 441 plus 32 is equals to 1 plus 72, that will be 473, है ना. नाउ चेंज इन काइनेटिक, अगर एनर्जी को हम बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों एनर्जी को माइनस कर देते हैं. सो दिस विल बी माइनस 73, दैट इज 400 जूल. ओके, सो द थर्ड ऑप्शन विच इज गिवन टू अस इज change in loss of kinetic energy due to collision is 200 joule. तो this statement is false because हमें पता चला है कि वो है 400 joule है, ठीक है. Now the impulse of force between two ball is 40 Newton. Okay, so impulse of force between two balls, impulse को find करेंगे हम. इम्पल्स को हम लिख सकते हैं I which is equals to force for is applied for small time which is equals to change in momentum, ठीक है. सो अगर हम इम्पल्स फाइंड कर रहे हैं तो I को हम चेंज इन मोमेंटम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स हम कह सकते हैं चेंज इनिशियल माइनस फाइनल या जो भी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल. अब देखते हैं चेंज ऑफ इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2, करेक्ट. सो m1 u1 कितना हुआ, 1 इंटू 21 प्लस 2 इंटू माइनस 4 दैट इज 21 माइनस 8 और 13, करेक्ट. सो मोमेंटम हो गया हमारा kg मीटर पर सेकेंड. अगर हम फाइनल को देखें सो pf विल बी, ठीक है, pf विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6
that is 1 plus 12 or 13 kg मीटर पर सेकेंड. सो फाइनल मोमेंटम भी हमारा क्या हुआ है 13 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल मोमेंटम भी हमारा क्या आया है 13 मीटर पर सेकेंड. दोनों ही मोमेंटम क्या है सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम हम कह सकते हैं ज़ीरो हुआ है. दैट मीन्स इम्पल्स जो होगी, ठीक है, वो क्या रहेगी सेम रहेगी. करेक्ट. तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें, सो यहाँ पर है the impulse of force between two ball is 14 newton, so no, it was 13 newton. So this statement is false. So then the correct statement is for A and B. So I hope this is clear to you. Thank you.